Hello students, welcome to my channel and welcome to the fourth video in the History of British Literature series. Till now we have covered Old English and we have also covered two parts of Middle English period. As I have told you that Middle English period is divided into three sections. The first section it talks about the Middle English period before Chaucer. Then we have Age of Chaucer and then we have Middle English period after Chaucer, that is also known as Age of Revival. In this video we are going to especially look at the Age of Revival, the major historic events and the main works written in this period. Guys, हमने एक न्यू सीरीज स्टार्ट की है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पर और इस वीडियो में हमने कोशिश की है कि हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर को आसान शब्दों में आपके सामने रख सकूं। और ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश लिटरेचर पर हमारा फोर्थ वीडियो है। गाइस, आपको बता दूं कि इससे पहले हमने ओल्ड इंग्लिश को तथा मिडिल इंग्लिश पीरियड की टू पार्ट्स को ऑलरेडी कवर्ड किया है और जैसा कि हमने आपको बताया कि मिडिल इंग्लिश पीरियड थ्री सेक्शंस में डिवाइडेड हैं, बिफोर चौसर, एज ऑफ चौसर एंड लास्ट एज ऑफ रिवाइवल। तो इस वीडियो में स्पेशली हम लोग एज ऑफ रिवाइवल के मेजर हिस्टोरिक इवेंट्स एंड मेजर वर्क्स को डिस्कस करेंगे। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। एज ऑफ रिवाइवल basically means that revival of all literature is happening. So this was a time when people started looking back and started reading the ancient Greek and Roman texts. So lot of Roman and Greek texts were circulated because of crusades. So what happened? Because of crusades, all these ancients and Greeks and Romans literature was spread across Europe and people started reading and appreciating what fantastic words these old writers have written, and because all these writers started imitating or at least reading those ancient texts, we know it as a period of Renaissance. Renaissance means rebirth. When something which has died again start to come up is rebirth. So all the Greeks and Roman architecture, music, literature, everything died because Roman civilization collapsed somewhere around 400 AD. After 400 AD, it was in somewhere around 1400 AD that people started going back and looking at those works. So this is the reason why it is called as Renaissance. गाइस, एज ऑफ रिवाइवल के पीरियड में लिटरेचर फिर से सशक्त हो रहा था, इसलिए ये एक ऐसा टाइम पीरियड था जब लोग फिर से ग्रीक और रोमन ग्रंथों को, टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट कर रहे थे। क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध के कारण बहुत से रोमन और ग्रीक टेक्स्ट का प्रचार प्रसार हुआ था। इसी क्रूसेड्स की वजह से ही लोग ऑल टाइप्स के एंशिएंट ग्रीक एंड रोमन लिटरेचर पूरे यूरोप में फैलना स्टार्ट हो गया था और लोगों ने इसे पढ़ना शुरू कर दिया था। ऐसा ओल्ड राइटर्स ने लिखा है और मानते हैं कि इमिटेटिंग ही सही, मतलब कॉपी ही सही, एटलीस्ट लोग पढ़ना तो शुरू कर रहे थे। इसलिए इस पीरियड को हम लोग रेनेसेंस यानी कि पुनर्जागरण काल के रूप में भी जानते हैं। और रेनेसेंस का मतलब ही होता है कि जो कोई चीज मर गई हो या नष्ट हो गई हो, खत्म सा हो गया हो, उनका फिर से रिवर्थ होना या पुनर्जन्म होना। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं रोमन एंड ग्रीक के आर्किटेक्चर, म्यूजिक एंड लिटरेचर की, जो 400 AD के आसपास कोलैप्स हो गई थी, ढह गई थी, समझिए खत्म सी हो गई थी। वो अब 1400 AD में निकलकर सामने आने लगा था। लोगों ने अब उन वर्क्स को, टेक्स्ट को देखना और पढ़ना शुरू कर दिया था। इसीलिए इन्हीं कारण है कि इसे रेनेसेंस पीरियड भी कहा जाने लगा था। नाउ लेट्स मूव। मेनी पॉलिटिकल एंड कल्चरल चेंजेस हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड एंड द लॉन्ग वॉर ऑफ फ्रांस
and the Civil War of Roses distracted attention from books and poetry. The Reformation in the later part of this period filled men's mind with religious questions. The revival of learning set scholars and literary men to an eager study of classics. This is notable for its intellectual progress, for the introduction of printing, the beginning of the Reformation, and the growth of political power. Rise of wood block printing gave rise to printing by 1450 AD. Johannes Gutenberg used metal instead of wood blocks, and this became known as movable type of machine. Since the metal blocks letters could be moved around to create new words and sentences, the printing press was invented by Johannes Gutenberg. No printing reached Europe in 1450, but it was brought to England William Caxton in 1476. It means इसी पीरियड में कई तरह के राजनीतिक और सांस्कृतिक चेंजेस हुए। फ्रांस के लॉन्ग वॉर और रोजेस सिविल वॉर के कारण बुक्स एंड पोइट्री से लोगों का ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो गया था, मतलब राइटिंग से हटाकर वॉर और युद्ध पर सबका ध्यान लग गया था। लेकिन लोगों के मन में धार्मिक प्रश्न उठने लगे थे और लोगों के सीखने के लिए बड़े बड़े स्कॉलर्स और साहित्यिक पर्सन को सेट किया जा रहा था, और इसके साथ ही प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत भी हो गई थी। यह एक तरह का नोटेबल रिफॉर्मेशन था उस पीरियड में। वुड ब्लॉक प्रिंटिंग से पॉलिटिकल पावर में वृद्धि हुई थी, और अब वुड ब्लॉक की जगह पर अब वे मेटल ब्लॉक का यूज करने लगे थे, क्योंकि मेटल ब्लॉक अक्षर, नए वर्ड्स और सेंटेंसेस को बनाने के लिए इधर उधर ले जाया जा सकता था। और गाइस, आपको बता दें कि प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार, इन्वेंशन जोहान्स गुटेनबर्ग द्वारा किया गया था। तब इससे पहले तक कोई भी प्रिंटिंग प्रेस 1450 तक यूरोप नहीं पहुंचा था, लेकिन 1476 में इंग्लैंड के विलियम कैक्सटन ने प्रिंटिंग प्रेस से इंग्लैंड को परिचित करवाया था। तो याद रखिए कि इसी पीरियड में एज ऑफ रिवाइवल में प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार जोहान्स गुटेनबर्ग के द्वारा किया जा चुका था। Let's move on. During the early stages of Christianity, churches were mainly Catholic, and Catholic churches are the purest form of Christianity. Practices are quite rigid. The Protestant Reformation was a movement against these Catholic churches, and this movement was started by Martin Luther. Another Reformation movement in Switzerland was started by John Calvin. War of Roses. War of Roses were a series of civil wars fought for the throne of England between two competing royal families, the House of York and the House of Lancaster. The House of York was represented by White Rose, and the House of Lancaster represented by Red Rose. After the War of Roses ended came the Tudor dynasty. Both royalties fought and there was no result, and thus the War of Roses come an end. गाइस, अब बात आती है चर्च की और धर्म की। तो ईसाई धर्म के प्रारंभिक दौर के दौरान चर्च मेनली कैथोलिक थे, क्योंकि कैथोलिक चर्च क्रिश्चियनिटी रिलीजियस के लिए धर्म का सबसे शुद्ध रूप माना जाता था, क्योंकि इस धर्म की प्रथाएं बहुत कठोर थी, कड़ा कानून था। और इस पीरियड में प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन कैथोलिक चर्च के अगेंस्ट एक सुधार आंदोलन था, और इन आंदोलन की शुरुआत मार्टिन लूथर ने की थी। उसी दौरान स्विट्जरलैंड में एक और सुधार आंदोलन जॉन कैल्विन द्वारा शुरू किया गया था, वॉर ऑफ रोजेस, और इस वॉर का नाम था वॉर ऑफ रोजेस। और ये वॉर ऑफ रोजेस दो शाही परिवारों के बीच इंग्लैंड के सिंहासन के लिए लड़ा गया एक सिविल वॉर की एक सीरीज थी, जिसमें हाउस ऑफ यॉर्क व्हाइट रोज को रिप्रेजेंट कर रहे थे एंड हाउस ऑफ लैंकेस्टर रेड रोज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। एंड वॉर ऑफ रोजेस के बाद ट्यूडर डायनेस्टी आया। तब दोनों रॉयल्टीज फैमिली ने मिलकर उनका मुकाबला भी किया, बट
कोई रिजल्ट नहीं निकला और इस तरह से वॉर ऑफ रोजेस खत्म होता है और ट्यूडर वंश की स्थापना होती है। नाउ लेट्स मूव ऑन। हेनरी द सेवेंथ। Henry VII brought peace into England by introducing government reformation and increasing royal control. He improved infrastructure of England, which were devastated by year of war. He was lover of knowledge and sent scholars to Italy to learn Greek and Latin. Guys, जब ट्यूडर डायनेस्टी स्थापित हो जाती है तो वहाँ के किंग बनते हैं हेनरी VII। और ये हेनरी VII कौन थे? तो ये हाउस ऑफ लैंकेस्टर के दूर का कजन था और अब ट्यूडर का फर्स्ट किंग बन गया था। और हेनरी VII अपने दम पर बैटल में युद्ध जीतकर इंग्लैंड के किंग बने थे और ये सिंहासन जीतने वाला इंग्लैंड का लास्ट किंग बने थे। इन्होंने इंग्लैंड में काफी सुधार किया, उनके बुनियादी ढांचे में सुधार किया। जो युद्ध के वर्षों में तबाह हो गए थे वे ज्ञान के प्रेमी थे, इसीलिए उन्हें लवर ऑफ नॉलेज भी कहा जाता था। और उन्होंने कुछ विद्वानों स्कॉलर्स को ग्रीक और लैटिन सीखने के लिए इटली भी भेजा था। आफ्टर दिस comes the round of Henry VIII. Henry VIII is the best known for his 6 marriages. He appointed himself as the supreme head of the church. Henry dissolved convents and monasteries. Henry VIII is also known as the father of Royal Navy, as he invested heavily in navy to satisfy his desire and secure a male heir. Henry married 6 times. First he married Catherine of Aragon, but she gave birth to a daughter named Mary. Second, in 1536, Henry married Anne Boleyn, who gave birth to Elizabeth I. His third wife, Jane Seymour, died in 1537, shortly after giving birth to Edward VI. Fourth, Henry VIII married Anne of Cleves, and fifth, Kathleen Howard was fifth wife of Henry VIII, and Henry's last wife was Catherine Parr. After the death of Henry VIII, Edward VI became the king 1547 to 1553. He was in reign for only 6 years and died at a very early age. Henry VIII was Protestant. Only Catherine of Aragon was Catholic. Rest all his wives were Protestants. So after Edward VI, the throne was ascended by Mary I, 1553 to 1558. She was a daughter of Catherine of Aragon, and she reinstilled Catholicism and executed the Protestants. Caused too much bloodshed. This is the reason why Mary I earned the name Bloody Mary. In 1558, upon Mary's death, Elizabeth I, 1558 to 1603, succeeded her half-sister to the throne. Elizabeth's reign came to be known as the Golden Age of England. She allowed both Protestant and Catholics to live in harmony. Elizabeth I was called the Virgin Queen Gloriana or Good Queen Bess. Elizabeth was the last 5 monarchs of the House of Tudor. हेनरी VII के बाद अब हम हेनरी VIII की बात करते हैं। हेनरी VIII को अपने 6 शादियों के लिए जाना जाता है। उन्होंने खुद को चर्च का सुप्रीम हेड ऑफ चर्च घोषित कर दिया था और साथ ही साथ मोनास्ट्रीज के विश्वास को भी भंग किया था, लेकिन फिर भी उन्हें रॉयल नेवी के पिता के रूप में जाना जाता, क्योंकि उन्होंने अपनी इच्छा को पूरा करने तथा एक उत्तराधिकारी, एक गद्दी का वारिस की जगह सिक्योर करने के लिए नौसेना पर बड़ी मात्रा में निवेश किया था, खर्च किया था। हेनरी VIII ने 6 शादियां की थी। उन्हें अपने गद्दी का वारिस चाहिए था, इट मीन्स उन्हें एक बेटा चाहिए था और इसीलिए उन्होंने 6 शादियां की थी। सबसे पहले एरेगन ऑफ कैथरीन से शादी की। उन्होंने मेरी नाम की एक बच्ची को जन्म दिया। उसके बाद 1536 में एनी बोलिन से शादी की, जिन्होंने एलिजाबेथ I को जन्म दिया। 1537 में उनकी तीसरी रानी ने एक बेटा एडवर्ड VI को जन्म दिया और इसके तुरंत बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। इसके बाद हेनरी VIII ने एनी ऑफ क्लेव्स से शादी की। हेनरी की 5वीं रानी कैथलीन हावर्ड थी और उनकी आखिरी और छठी
अंतिम रानी कैथरीन पार थी। हेनरी द एट्थ की डेथ के बाद एडवर्ड सिक्स्थ किंग बने 1547 to 1553, लेकिन एडवर्ड द सिक्स्थ महज 6 साल ही शासन कर पाए और बहुत कम उम्र में ही उनकी डेथ हो गई। एडवर्ड द सिक्स्थ के डेथ के बाद मैरी द फर्स्ट, जो कि उनकी हाफ सिस्टर थी, वो गद्दी पर बैठी, जो कि कैथरीन ऑफ एरेगन की डॉटर थी, एडवर्ड की सौतेली बहन थी। जैसे ही मेरी गद्दी पर बैठती है, बैठते ही उन्होंने कैथोलिक धर्म को फिर से शुरू कर दिया और प्रोटेस्टेंट्स को एग्जीक्यूटेड किया, मीन्स मरवा दिया, जिससे बहुत ज्यादा खून खराबा हुआ, रक्तपात हुआ और इसी कारण से वहाँ के लोगों ने मेरी को ब्लडी मैरी का नाम दिया। इसके बाद 1558 में मेरी की डेथ हो जाती है और अब मेरी की हाफ सिस्टर, उनकी सौतेली बहन एलिजाबेथ फर्स्ट गद्दी पर बैठती है और वो काफी लंबे समय तक शासन करती है और इसके शासन काल को ही गोल्डन एज का नाम दिया गया था। इन्हीं के शासन काल को गोल्डन एज कहा जाता था, क्योंकि एलिजाबेथ ने दोनों रिलीजियस को, कैथोलिक को और प्रोटेस्टेंट को, दोनों को सामंजस्य बनाकर, एकता बनाकर रखा था और उन पर शासन किया था। दोनों को बराबर का मान सम्मान दर्जा दिया था, इसलिए इनके एज को गोल्डन एज कहा जाता है। Now let's move on. And now we will talk about the list of few Bibles which comes around this period. We have the Wycliffe's Bibles 1382 and Gutenberg's Bible 1450, Tyndale's Bible 1525, Miles Coverdale's Bibles 1535 and Genomics Bible and Bishop Bibles 1568, James Bible in 1612 and we have the most recent ones, Revised Bible 1952. Now we will talk about some important writers of this age. Erasmus of Rotterdam. Erasmus of Rotterdam was a Catholic priest and a social critic. He was also a teacher and theologian. Erasmus is considered to be the greatest humanist of Northern Renaissance. Erasmus was given the title of Prince of Humanists and has also been called as the crowning glory of the Christian humanist. He was there in the Catholic Church as a priest, but he knew that Catholic churches are corrupt. So Erasmus' Praise to Folly is an essay written in Latin in 1509. This work was inspired by previous works of Italian humanist Faustino Pari. His Praises of Folly is a bold satire that pokes fun at the foolishness of mankind. Guys, अगर हम बात करते हैं इरेस्मस की, तो ये रॉटरडेम के एक कैथोलिक प्रीस्ट थे और कैथोलिक प्रीस्ट एक पादरी होने के साथ साथ ये एक सोशल क्रिटिक भी थे। इरेस्मस एक टीचर और एक धर्मशास्त्री भी थे। इन्हीं सब गुणों के कारण इन्हें ग्रेटेस्ट ह्यूमनिस्ट ऑफ नॉर्दर्न माना जाता है और इन्हीं कारणों से इन्हें प्रिंस ऑफ ह्यूमनिस्ट की उपाधि भी दी गई थी। इनकी लिखी गई एक निबंध प्रेज टू फॉली है। ये एक बोल्ड सटायर है जो कि मैनकाइंड की फूलिशनेस पर आधारित है। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट द फेमस राइटर ऑफ दिस पीरियड, थॉमस मोर। एंड थॉमस मोर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट राइटर ड्यूरिंग दिस एज ऑफ रिवाइवल. He was an English lawyer, social philosopher, author, a statesman, and a noted Renaissance humanist. Moore was consigliere to Henry VIII, and he opposed the Protestant Reformation. Thomas More opposed Henry VIII's separation from the Catholic Church and refused to acknowledge Henry as the supreme head of England, and also rejected Henry VIII's marriage to Catherine of Aragon. After refusing to take oath of supremacy, he was convicted of treason and was executed, and just before his execution he told the crowd of spectators, "I died as the king's true servant, but God's first." Sir Thomas More was the first person to write of a utopia, a word used to describe a perfect imaginary world. More's book imagines a complex self-contained community set on the island in which people share a common culture and a way of life. He coined the word utopia from the Greek word utopos, which means good place.
It was a fun, and this book was published in the year of 1516. It was written in Latin. Guys, थॉमस मोर इस एज ऑफ रिवाइवल के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट राइटर थे। वे एक इंग्लिश लॉयर के साथ साथ एक सोशल रिफॉर्मर भी थे, फिलोसोफर भी थे, राजनेता और फेमस पुनर्जागरण के मानवतावादी व्यक्ति थे। इन्होंने हेनरी द एट के प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का विरोध किया था और यही वो शख्स थे जिन्होंने हेनरी द एट को हेड ऑफ इंग्लैंड मानने से इनकार किया था और हेनरी द एट को चर्च से हटाने की अपील भी की थी। यहाँ तक कि मूर ने हेनरी द एट की कैथरीन ऑफ एरागन से शादी को भी नकारा था। इन सबसे गुस्सा होकर इनको देशद्रोही ठहराकर इन्हें मार दिया गया था। लेकिन मरते वक्त इन्होंने वहां इकट्ठी उस भीड़ से कहा था कि मैं राजा के सच्चे सेवक के रूप में मर गया, लेकिन मैं गॉड का सच्चा हूँ, उनका प्रिय हूँ। थॉमस मूर का फेमस वर्क है यूटोपिया। यूटोपिया वर्ड का यूज एक इमेजिनरी वर्ल्ड का वर्णन करने के लिए किया जाता है। यूटोपिया वर्ड को ग्रीक वर्ड से लिया गया था। Now we will talk about William Tyndale, and some of the works by William Tyndale are Tyndale's Bible and Practice of Prelates. It's the obedience of a Christian man. The next author is Richard Tottel, and Richard Tottel is the one who is the official publisher of the first printed anthology of English poetry. And he was an English publisher and influential member of legal community. He ran his business from a shop located at Temple Bar in London. And some more writers are William Caxton, William Dunbar, Leonardo da Vinci, and Thomas Wyatt, etc. These are the famous writers of this period. इसके बाद बात करते हैं विलियम टिंडल्स की। इनके कुछ वर्क हैं टिंडल्स बाइबल एंड प्रैक्टिस ऑफ प्रीलेट्स। इनके बाद हैं रिचर्ड टॉटेल। ये एक अंग्रेजी प्रकाशक थे और कानूनी समुदाय के प्रभावी सदस्य थे। इसी पीरियड के कुछ और राइटर्स भी हैं लियोनार्डो डी विंसी, विलियम कैक्सटन, विलियम जनबर एंड थॉमस वेट एक्सेट्रा। तो गाइस, ये था एज ऑफ रिवाइवल पर हमारा आज का वीडियो। अपने सुझाव और सजेशन कमेंट्स बॉक्स पर जरूर लिखें ताकि आने वाले वीडियो को हम और बेहतर बना सकें। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।